آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ گیٹ آؤٹ! میں اتنے زور سے دھاڑا کہ میریسا اچھل پڑی۔ اس نے مہکانہ انداز میں میری شکل دیکھی، لیکن میری آنکھوں میں دیوانگی میں سرخی نظر آ رہی تھی۔ سرفراز! وہ سہمی آواز میں بولی۔ آئی سے گیٹ آؤٹ! میں اس انداز سے آگے بڑھا جیسے میریسا کا منہ نوچ لینا چاہتا ہوں۔ میریسا خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹی اور پھر الٹے قدموں دوڑ گئی۔ میرے پیٹ میں کہکہے ابل رہے تھے۔ میریسا کا عشق تو اب ٹھنڈا ہو ہی جائے گا۔ ظاہر ہے ایک نیم پاگل انسان میں کون دلچسپی لے سکتا ہے۔ بیوقوف لڑکی ابھی تک لکیر پیٹ رہی ہے۔ کیا ملے گا اسے ان کھنڈرات میں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کافی دیر تک میں ریلنگ سے ٹکا ہوا کھڑا رہا، پھر اپنے کیبن کی طرف چل پڑا۔ کیبن میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور لباس تبدیل کر کے ایک آرام کرسی میں دراز ہو گیا۔ ایک بار پھر اداسیاں میرے ذہن میں رینگ آئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ تب دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے نواب صاحب کھڑے تھے۔ کہو بھائی سرفراز میاں، کیا ہو رہا ہے؟ نواب صاحب بے تکلفی سے بولے۔ کچھ نہیں، یوں ہی کچھ سوچ رہے تھے، کوئی خاص بات نہیں۔ پھر بھی عرض کیا نا، کوئی خاص بات نہیں بھائی، بہت دنوں سے تم سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی۔ آج میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حاضر ہوں نواب صاحب، لیکن دوران گفتگو اگر کافی کا دور رہے تو گفتگو میں لطف آئے گا۔ میں ابھی منگواتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں نے ویٹر کو بلانے کے لیے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ ویٹر کے آنے پر میں نے کافی کا آرڈر دیا اور پھر نواب صاحب کے سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ اس دوران لندن میں کچھ ایسا مصروف رہا کہ تم سے ٹھیک سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ تم نے محسوس تو نہیں کیا؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ قطعی نہیں۔ ظاہر ہے آپ کے دوست ملے تھے۔ ہاں، تم بور تو نہیں ہوئے؟ جی نہیں۔ ہاں بھائی، کوثر میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ جی بھائی، اب سرفراز صاحب ہو گئے ہیں، نواب صاحب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں عرض کر چکا ہوں، کوثر بھی طبیعتاً بری نہیں ہے، بس جب وہ تم سے بدتمیزی کرتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ اس موضوع کو ذہن سے خارج ہی کر دیں۔ ہاں، تمہاری اعلیٰ ظرفی سے میں مطمئن ہوں۔ خیر جانے دو، میں تم سے آج جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، نواب صاحب نے کہا، اور ان کی سنجیدگی دیکھ کر میں بھی سنبھل گیا۔ میں سوالیہ انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ نواب صاحب گفتگو شروع کرتے، ویٹر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ کافی آ گئی تھی۔ میں نے 2 پیالیاں بنائی، ایک نواب صاحب کے سامنے رکھی اور دوسری اپنے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ یوں تو شاید میں نے تم سے اپنی بہت سی مہمات کا ذکر کیا ہے، درجنوں خوفناک مراحل میری زندگی میں آئے ہیں، لیکن اس بار ایک خاص مہم درپیش ہے۔ جی، میں آہستہ سے بولا۔ نواب صاحب نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر پیالی رکھ کر ہونٹ خشک کرتے ہوئے بولے۔ پچھلی بار میری پارٹی، جس میں یہ سبھی لوگ شامل تھے، افریقہ کے ایک خاص مقام روتو کوزے کی طرف گئی تھی۔ روتو کوزے ایک دریا کا نام ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے تہہ میں بیش قیمت جواہرات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان جواہرات کی تلاش تھی۔ روتو کوزے ایک ہی سندھ بہنے والا دریا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنا بےحد مشکل، قدم ہی نہیں جم سکتے۔ جم کورسیا تو ایک ماہر تیراک تھا، صرف اسی نے دریا میں اترنے کی ہمت کی، لیکن ہم مشکل ہی سے اس کی زندگی بچا سکے تھے۔ چنانچہ سب چھوڑ بیٹھے، تب ہم نے دریا کے کنارے سفر شروع کر دی۔ ہم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں دریا اتلا ہو اور بہاؤ کم ہو۔ اس طرح ہم نے دریا کے کنارے ایک طویل سفر کیا، لیکن دریا کہیں اتلا نہ تھا، بہاؤ کہیں کم نہ تھا۔ تب ہم جی چھوڑ بیٹھے۔ اس رات ہم نے دریا سے تھوڑی دور ہٹ کر قیام کیا۔ چاروں طرف ویران پہاڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ رات کو ہم نے کافی دور پہاڑیوں میں روشنی دیکھی تھی اور حیران رہ گئے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید افریقی وحشیوں کی کوئی بستی قریب ہے اور یہ روشنی وہیں سے آ رہی ہے۔ بہرحال اس خیال نے ہمیں رات بھر سونے نہ دیا۔ دوسری صبح ہم بندوقوں سے لیس ہو کر چل پڑے اور پھر درختوں سے کاٹے ہوئے موٹے تختوں کا ایک بڑا سا احاطہ ہمیں نظر آیا۔ کافی سلیقے سے بنا ہوا تھا، اس میں باقاعدہ بند ہونے والا دروازہ بھی تھا۔ ہم ہمت کر کے اس دروازے قریب پہنچ گئے اور پھر میں نے چیخ کر وہاں موجود لوگوں کو آوازیں دی۔ تب ایک شخص کی شکل دروازے کے پاس نظر آئی۔ طویل القامت، طویل حبسہ، شاید عربی نسل تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا، بڑی تیز اور جاندار آنکھیں تھیں۔ وہ ہمیں سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کرنل رکسن نے اسے مخاطب کیا۔ سیاح ہو؟ اس نے انگلش میں کہا۔ ہاں۔ سونے کی تلاش میں آئے ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ فی الحال تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ میرا مذہب مہمانوں کی تواضع کا حکم دیتا ہے، ورنہ میں انسانوں سے بیزار ہوں۔ آؤ، اس نے کہا اور مڑ گیا۔ ہم اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ طویل و عریض احاطہ تھا جہاں باقاعدہ رہائش گاہ موجود تھی۔ عجیب پراسرار سا ماحول تھا جس نے ہم لوگوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی۔ بہرحال قیام کے لیے اس نے ہمیں ایک جگہ بتا دی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے پراسرار میزبان سے گفتگو کریں، اس سے دریا کے ہیروں کے بارے میں معلوم کریں، اس خطے کے بارے میں معلوم کریں۔
बहरहाल वो एक महजब नस्ल का इंसान मालूम होता था, लेकिन इसकी पुरस्रार खामोशी, इसका बेजार बेजार सा अंदाज हमारे अंदर जुर्रत नहीं पैदा होने दे रहा था कि हम इससे गुफ्तगू करें। क्या ख्याल है फिरोज, किस टाइप का आदमी है? अजीब, न जाने आदमी है भी कि नहीं, मैंने जवाब दिया। ओह, तुम मशरिक की कोई पुरस्रार दास्तान दोहराओगे? कर्नल डिक्सन ने हंसते हुए कहा। फिर तुम ही इसके बारे में कुछ बताओ। भाई है तो पुरस्रार, शक्ल और सूरत से भी मशरिकी ही लगता है। मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक मशरिक वस्ता की किसी मुल्क से है, एक दूसरे ने मेरी तायद में कहा। लेकिन अब क्या किया जाए? क्या मतलब? अरे भाई, क्या सिर्फ इन झोपड़ियों में क़याम करोगे? अगर इसने घास ही न डाली तो फिर क्या खाक मालूम हो सकेगा? तो फिर तुम ही बताओ। थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें, फिर इससे मुलाकात की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें किसी कोशिश की ज़रूरत पेश न आई। दोपहर को हमारा पुरस्रार मेज़बान हमारे पास आया। साहिबो, खाना तैयार है, आओ, इसने मुख्तसर अल्फाज और सपाट लहजे में कहा। चलो, कर्नल डिक्सन उठते हुए बोला, और हम सब उठ गए। हमारा मेज़बान हमें लिए हुए रिहाइशगाह के दूसरे हिस्से में पहुंचा। एक बड़ा सा हाल था जिसमें पुरानी तर्ज का कुछ फर्नीचर मौजूद था। फर्श पर प्याल के ढेर मौजूद थे। एक भद्दी सी मेज जो किसी दरख्त की चौड़ी लकड़ी में पाए लगाकर बनाई गई थी, और स्टूल टाइप की कुछ कुर्सियाँ। मेज पर बना हुआ कुछ गोश्त, पनीर और पानी का एक बर्तन। बैठो, मेज़बान ने कहा। हमने आपको तकलीफ दी, शुरू करो, इसने हमारी बात का नोटिस लिए बगैर कहा, और खुद भी एक स्टूल पर बैठ गए। हमने बेतकल्लुफ़ी से खाना शुरू कर दिया। इंतहाई लजीज गोश्त था, खूब डट कर खाया, तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं थी। खाने के बाद हमारे मेज़बान ने कहवा पेश किया। कहवा पीने के दौरान हमने मौका गनीमत जानकर इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया। मोअज़्ज़िज़ मेज़बान, को हम ज़बरदस्ती के मेहमान हैं, लेकिन आपने बहरहाल हमें बहैसियत मेहमान कबूल किया है, तो इसके साथ कुछ और रसूम भी तो होती हैं। मसलन, इसने भारी लहजा में पूछा। इसका चेहरा इस वक्त भी किसी किस्म के तासुरात से आरी था। मसलन तारुफ ज़रूरी है? हाँ, रसूमात में शामिल है। मुझे रसूमात से नफरत है, इसने बेजारी से कहा। तब फिर आपने हमारी मेज़बानी ही क्यों की? हाँ, वो कुछ सोचने लगा, फिर इसके चेहरे पर हल्के से नफरत के आसार भरे। दरअसल मुझे दौलत के पुजारियों से सख्त नफरत है। तुम लोग जिंदगी की बाजी लगाकर सोने की तलाश में आते हो, हादसात जन्म देते हो, कुत्ते की मौत मरते हो या दूसरों को मार जाते हो। गौर करो, ये चमकती धात इंसानी जिंदगी में क्या हैसियत रखती है। तुम इसे खा नहीं सकते, तुम इसके हथियार नहीं बना सकते, किसी काम भी तो नहीं आ सकती है, लेकिन तुम इसके लिए जिंदगी को जहन्नम बना देते हो। मुझे तुमसे नफरत है, सख्त नफरत। ओह, लेकिन हम सोने की तलाश में नहीं आए, फिर क्यों इन चेहराओं की खाक छान रहे हो? हम मुहिम जू हैं, एडवेंचर पसंद। अफ्रीका एक पुरस्कार और दिलकश खित्ता है, इसकी कशिश हमें खींच लाई है। झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। अगर तुम्हारे सामने रोशन पत्थरों का कोई ढेर आ जाए तो क्या तुम इसके लिए एक दूसरे को कत्ल करने पर ना तुल जाओगे? शायद नहीं मेरे मेज़बान। आला ज़र बनने की कोशिश मत करो। मैंने बैरूनी दुनिया से आए हुए दो भाइयों को कीमती पत्थरों के लिए एक दूसरे की जान लेते देखा है। ओह नहीं, तुम गलत फहमी में मुब्तला हो दोस्त, मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। हमारे मेज़बान के चेहरे पर किसी कदर नरमी के आसार नमूदार हो गए। तो फिर तारुफ की रस्म पूरी हो जाए? हाँ, वह आहिस्ता से मुस्कुराया। शायद तुम मुझे मुतासिर करने में कामयाब हो गए हो। यही सही, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम फैज़ान आमरी है, कभी मिस्र का बाशिंदा था, अब मुस्तकिल इसी जगह ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। खूब, मैंने हैरत से कहा। यकीनन आपकी ज़ात से कुछ कहानियाँ वाबस्ता हुई होंगी। कहानियाँ किसकी ज़ात से वाबस्ता नहीं होती? वो खला में घूरते हुए बोला। ठीक कहते हो, मैंने कहा, और अचानक हमारा मेज़बान चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर फिर वैसी ही करख्तगी नमूदार हो गई। अच्छा दोस्तों, आराम करो, शाम के खाने पर मुलाकात होगी। अरे अरे क्यों? हम इसके अचानक इस तरह उठने से हैरान रह गए। इससे ज़्यादा गुफ्तगू मेरी शरीयत के खिलाफ है, वो सख्त लहजे में बोला। तब हमें इजाज़त दो, कर्नल डिक्सन ने नाखुशगवार लहजे में कहा, और वो चौंक कर डिक्सन की शक्ल देखने लगा। कहाँ जाओगे? हमारे पास बंदूकें हैं, इनके इस्तेमाल से भी वाकिफ़ हैं। शिकार कर सकते हैं, खा सकते हैं। क़याम के लिए तुम्हारे इस महल ही का इंतखाब नहीं किया था। किसी भी पहाड़ की कोई चट्टान हमारे सरों का साहिबान बन सकती है। खुदा हाफिज़। कर्नल डिक्सन वापसी के लिए मुड़ा। ओह ठहरो ठहरो दोस्तों, शायद तुम नाराज़ हो गए। तुम्हारे मजहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आने वाले को गोश्त भून कर खिला दो, खुश अखलाकी और तवज्जो भी तुम्हारे मजहब का एक फरीज़ा है, डिक्सन ने कहा। दरअसल वो दूसरी तरफ मुँह करके बोला, मैंने दुनिया की रस्मों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। लोग हकीकी चेहरे लेकर सामने नहीं आते। मैंने दुनिया ही छोड़ दी है। कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया से। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे तुमसे भी कोई दिलचस्पी नहीं। बस जाओ, गेट आउट। वो धाड़ा। उलझे हुए इंसान मालूम होते हो, दिल हल्का कर दो वरना फट जाओगे, मर जाओगे।
डिक्सन मुस्कुराते हुए बोला, क्या दे दोगे मुझे? तस्कीन, सुकून, मोहब्बत? क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, बेकार लोग, बेकार बातें। तुम्हारी मर्जी। डिक्सन ने शाने उचकाए और हम सब वापसी के लिए मुड़ गए। सुनो 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 सुनो, मैं शर्मिंदा हूँ, रुक जाओ, लेकिन बराए करम मुझसे मेरे बारे में सवालात ना करना। हम एक मुआहदा कर लेते हैं मिस्टर फरजान आमरी। कैसा मुआहदा? हम लोग एक दूसरे को अपने बारे में बता देंगे। ये नहीं हो सकता, मैं मजबूर हूँ। चलो हालात जिस हद तक इजाज़त दें। अच्छा, इसने थके थके से लहजे में कहा और हम रुक जाने पर आमदा हो गए। शाम के खाने तक के लिए इजाज़त दो। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर हम अपनी इसी रिहाइशगाह की तरफ चल दिए जहाँ इसने हमें ठहराया था। हाँ भाई, क्या चीज़ है ये शख्स? कर्नल डिक्सन ने एक तवील सांस लेकर बैठते हुए कहा। जो कुछ भी है दिलचस्प शख्सियत है, लेकिन इसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। कोशिश तो की जानी चाहिए। यकीनन ये हीरो के बारे में बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन फिर इसकी नज़रों में हमारी पोजीशन भी इन्हीं लोगों की जैसी होगी जिनसे नफरत करता है। खुद ये क्या है पता लगना चाहिए। हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होगा। इस इमारत में तन्हा मालूम होता है। हाँ, कोई और शक्ल तो नज़र नहीं आई, न ही किसी और के वजूद का एहसास होता है। तो ये पूरा कारखाना इसका तामीर करदा है? क्या ताज्जुब है, मुमकिन है। फिर हीरो की क्या रही? यार रात और गुजार लो। अगर बुड्ढा इसी तरह एक्टिंग करता रहा तो इस पर लानत भेजकर सुबह यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, कर्नल डिक्सन ने कहा और हम सब खामोश हो गए। शाम तक आराम किया और फिर रात के खाने पर इससे मुलाकात हुई। इस वक्त इसके चेहरे पर गैर मामूली नरमी नज़र आ रही थी। इसने मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया था। मुझे अफसोस है इन वीरानों में मैं आप लोगों की कोई खातिर न कर सका। नहीं मिस्टर फरजान आमरी, अगर गौर करें तो खाना पीना ही कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, अगर आपसे मुकम्मल तारुफ हो जाता तो खातिर मुदारत के तमाम रस्में पूरी हो जाती। क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? बस यूं ही, तुम्हारी शख्सियत दिलकश है और दिलकशी की तरफ दौड़ना इंसान की फितरत है। नहीं दोस्तों, मैं सर से पांव तक एक कुचली हुई लाश हूँ जो सड़ चुकी है। तुम इसका ताफुन नहीं महसूस कर रहे। मेरी आंखों में देखो, क्या इनमें तुम्हें जिंदगी के चिराग रोशन नजर आते हैं? मैं बुझ चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। मुझ में जिंदगी नहीं मिलेगी और मुर्दा चीजों से किसे दिलचस्पी हो सकती है? देख सकते हो तो मेरी लाश देख लो और इसके बाद अपना तजस्सुस मुझ में दफन कर दो। इसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। इन अल्फाज से हम खासे मुतासिर हुए थे। दिल का राज तो कह देने से बोझ हल्के हो जाते हैं। मुमकिन है हम तुम्हारा कुछ दुख बांट सके। मैं दुखों से बेनियाज हूँ, जिंदगी का बोझ घसीट रहा हूँ। जब तक सांसों की गिरफ्त में हूँ, तोड़ सकते हो सांसों के ये तलस्म, तोड़ दो, मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। सभी मुतासिर थे। समझ में नहीं आ रहा था इसे हमदर्दी का इजहार करें या अपनी खोपियाँ दोनों हाथों से थाम कर सर पर दौड़ जाएं, लेकिन ये गैर इंसानी हरकत होती। मिस्टर फरजान, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर चाहें तो हमारी दोस्ती कबूल कर लें। मुमकिन है इससे हम दोनों का फायदा हो, डिक्सन ने कहा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।